More breaking news coming in, and this is in regard to the Bangladeshi players' selection as far as SRK's team KKR is concerned. Now, AIMIM is reacting to that, condemning the violence against Hindus. How does it matter when it comes to cricket? We objected to the India-Pakistan match, and now we're objecting to the match since Pakistan is the biggest terror backer. So that is the claim that is being made. So this is in regard to the controversy. Of course, it is in regard to the selection of a Bangladeshi player in the team of Shah Rukh Khan, and that took place last month in December. Let's get you the reactions. देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की सरकार उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करे, उनको सजा दे। देखिए, किसी को भी वायलेंस का मैंने हमेशा से कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए, कायदा किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मगर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, मगर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। किसने इजाजत दिया इनको मॉब लिंचिंग करने की? किसी को इजाजत नहीं है कायदा कानून अपने हाथ में लेने की। Abhishek, my colleague joining us, strong objection and reactions coming about to the selection of a Bangladeshi player, and Shah Rukh Khan, surrounded by that controversy, and particularly it's, Waris Pathan there speaking on the issue. We'll have to understand, because he also relating it to like how he claimed that minorities are affected in India itself, and mob lynching is being done. And this kind of a narrative he makes the point out there, and it also relates to how India allowed India-Pakistan match earlier, where he has openly condemned it, and whatsoever it matters, he says that when it comes to cricket. So definitely, in this entire controversy, he has his own point, and also relating it to the earlier when India allowed. And he also condemned that he's not in support of violence against Hindus in Bangladesh, but at the same time he also highlighted, as he alleged, that minorities, especially Muslims, are being targeted in India. Back to you. Right, of course, Shah Rukh Khan is being targeted over the Kolkata Knight Riders picking of the Bangladesh cricketer Mustafizur Rahman for the IPL. Now, the BJP leaders have slammed SRK, questioning the selection and invoking nationalism, with sharp attacks coming from multiple party netas. The Congress has now hit back. In fact, its Karnataka Minister Priyank Kharge asking why the BJP is suddenly outraged, pointing out that it's the BCCI and the IPL rules that allowed Bangladeshi players in the first place. Kharge says if there are questions, then the BJP should be questioning the Home Minister, accusing the party of selective nationalism. With politics heating up, it's the KKR pick that has turned into a full-blown national debate. देखिए, पब्लिक की तरफ से डिमांड आई है, और केकेआर के जो सपोर्टर उनके तरफ से भी विरोध हो रहा है कि कोई बांग्लादेशी को अलाउ नहीं करना चाहिए। बात यह है कि बांग्लादेश में अपने हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भारत के खिलाफ जिस प्रकार और विरोध हो रहा है भारत के खिलाफ, और जो हवा उठाया जा रहा है, ये और वहाँ का खिलाड़ी आके यहाँ खेलेगा, ये हमारे देश के सपोर्टर नहीं मानेंगे। जैसे कि पाकिस्तान को हमने बॉयकॉट किया, पाकिस्तानी के प्लेयर्स को नहीं लेते हम, तो बांग्लादेश को क्यों लेंगे? अगर सचमुच में यहाँ लेते हैं तो लोग केकेआर के मैच भी बॉयकॉट कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अंदर से कुछ ना बोलते हुए भी एक देश को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इन लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना ही होगा। अगर आपको इतनी ही चिंता बांग्लादेश के खिलाड़ियों की है, तो ये खुद बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते? अगर उनको ही आप लोगों को हायर करना है, यहाँ हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है बच्चों पे, तो हमारे देश की पहले इनको चिंता करनी चाहिए, बजाय उसकी जो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता बहुत खराब है। हम एक स्टेट है और वो एक देश है। बांग्लादेश को कुछ कम्युनिकेट करना है या स्टेप लेना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। अब देखिए, ऐसा कोई तो रेगुलेशन नहीं है कि बांग्लादेश के साथ पूरा फुल हर टायर में वो रिलेशन कट ऑफ किया जाए। शाहरुख खान एक सुपरस्टार है, इसीलिए सॉफ्ट टारगेट है। शाहरुख खान तो बहाना है, असली निशाना इनका कुछ और रहता है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के हमेशा दो मापदंड रहे हैं, दोहरी नीति इनकी रही है। अब आईपीएल सभी को पता है, भाजपा के नेताओं को भी पता है कि आईपीएल एक निजी टूर्नामेंट है, एक प्राइवेट टूर्नामेंट है। उसके अंदर खिलाड़ियों का जो चयन होता है वो पासपोर्ट से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है, टैलेंट से होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि जब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में हमारी टीम, जो भारत की टीम, वो पाकिस्तान की टीम के साथ क्यों खेली क्रिकेट? शाहरुख खान और ये दूसरे जो कोई खिलाड़ी है, ये पैसे के कठपुतलियां हैं। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, कभी भी उन्होंने भारतीयों को सम्मान देने की कोशिश नहीं की। उल्टा बांग्लादेश के लोगों को भी जब राजकीय पेच आता है उस टाइम भारत ने उनको सपोर्ट किया, उनको संभाला है। इसलिए शाहरुख खान जैसे कई आए कई गए, उससे हमारे राजनीति पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और ऐसे काम करने वालों को जनता भूलती भी नहीं। While it is the Congress leader defending Shah Rukh Khan, but it is the BJP completely hitting out. Here are the details you want to know. Anger simmers on the streets of Dhaka. Minorities continue to be targeted in Bangladesh as Hindus live in fear. While Bangladesh burns, a fresh political flashpoint has erupted here in India. Shah Rukh Khan, the owner of IPL franchise Kolkata Knight Riders, picked Bangladesh pacer Mustafizur Rahman in the recent IPL 2026 auction. And this decision, among the rising violence against minorities in Bangladesh, drew ire from a BJP neta, who called Shah Rukh Khan a traitor. समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। Spiritual gurus also slammed Shah Rukh Khan, calling for Rahman's omission from the team. जिस व्यक्ति की केकेआर टीम है, उस व्यक्ति को हीरो बनाने में इस भारत का रोल है, बहुसंख्यक हिंदुओं का रोल है। क्या उनके साथ बिल्कुल भी संवेदना नहीं है? तो हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में ही आईपीएल है और आईपीएल की ही एक टीम है, और उस टीम में आप जो है एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को ला रहे हैं जहां हिंदू सरेआम काटे मारे जलाए जा रहे हैं। तो आपको संवेदना याद करनी है, आपको संवेदना हिंदुओं के साथ रखनी है। इसलिए हम कह रहे हैं आईपीएल में कोई बांग्लादेशी नहीं खेलेगा। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। The opposition has swiftly hit back. शाहरुख खान के बारे में इस तरह की बात करना उचित नहीं है। शाहरुख खान ने कितनी ऐसी फिल्में बनाई है जो जिसका देशभक्ति से सीधा संबंध रहा है, और वो माने हुए जाने हुए विश्वव्यापी उनकी विख्यात है, वो मशहूर है। वो वैसे कलाकार के बारे में इस तरह की घटिया बात कहना उचित नहीं है। War of words continue with no end to violence in Bangladesh, a continued wave of political jibes. Bureau Report, NDTV.